Hello everyone. So today we'll continue with our CAT previous year question series, and this will be the LRDS at number 86 from CAT 2017 paper. Now we'll look at the question. So question क्या कह रहा है? In a square layout of size 5 by 5, 25 equal size square platforms of different heights are built. The heights in meters of individual platforms are shown below. जैसे first वाले platform की height है 6 meters, then 1, 2, 4 respectively. Individuals are seated on these platforms. We can say the individual A can reach out to individual B if all of the following three conditions are met. और three conditions क्या है? A and B are in the same row or same column. तभी वो एक दूसरे पे जा सकते हैं. A is lower than B. A is at a lower height than B. यानी अगर A B पे जा रहा है तो A की हाइट लोअर होनी चाहिए, कोई बड़ी हाइट से छोटी हाइट पे नहीं जा सकता. ठीक है. The third condition says if there is any individual between A and B, such individuals must be at a height lower than that of A. For example, इसका मतलब क्या है? Let's say ये B है, ये A है. अगर A को B से जाना है तो पहली बात तो कंडीशन क्या है? They should be in the same row. Yes, they are in the same row. A is at a lower height than B. Yes. And third condition, which says that if there is any individual between A and B, which is this individual, he needs to be at a height lower than A, which is true. A is at a height of 3, this individual is at a height of 2, so A can go to B. Had this been instead of 2, it had it been 5, तब वो A की हाइट से ज्यादा बड़ा हो जाता, तब A B पे नहीं जा पाता, इवन दो पहली दो कंडीशंस मीट हो रही हैं. ऑल ऑफ दीज थ्री कंडीशंस हैव टू बी मेट. ठीक है. Thus, in the table given above, consider the individual seated at height 8 on third row and second column. Third row, second column, इसकी बात हो रही है. He can be reached by four individuals. He can be reached by the individual on his left at height 7. Yes, so इससे this can go to this 8 by two individuals on his right at a height of 4. Yes, this 4 can go. This 6 can also go because 4 is between 8 and 6, but this 4 is less than 6. But this 5 cannot go because a 6 which is greater than 5 is between 8 and 5. Rows in the and by the individual at a height of 5 which is above 8. This 9 cannot go to 8 because 9 is greater than 8. So he can be reached by four individuals, which are 7, 5, 4, and 6. ठीक है. Rows in the layout are numbered from top to bottom and the columns are numbered from left to right, which is obvious. ठीक है. तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं. क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं? अगेन तुम्हें लाइक सेट पढ़ के समझ तो आई गया दैट इट इज गोइंग टू बी अनदर सिंपल सेट. फिर भी एक बार देख लेते हैं. हाउ मेनी इंडिविजुअल्स इन दिस लेआउट कैन बी रीच्ड बाय जस्ट वन इंडिविजुअल? सो कौन कौन ऐसे हैं जो सिर्फ एक इंडिविजुअल से रीच आउट हो सकते हैं? लेट्स मार्क देम विद रेड. ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट दिस 6, yes, he can reached by only one. Is it true? No, he can reach by two also because one is less than two. So 6 तो नहीं है. One cannot be reached by anyone क्योंकि सब कुछ one से बड़ा ही है. This two can be reached by only this one. So एक तो ये हो गया. ठीक है. अगर हम इस 4 की बात करें, he can be reached by 2 and 3, तो ये तो नहीं हुआ. This 3 cannot be reached by anyone. This 9 cannot be reached by anyone. But देखिए, sorry, they can be reached by uh, people, but more than one. When I'm talking about this 5, it can be reached by 1 and 3, so more than one. When talking about this 3, they can be reached by this 2 and this 2, more than one. Talking about this 2, it cannot be reached by anyone. क्वेश्चन क्या है? सिर्फ कैन बी रीच्ड बाय जस्ट वन इंडिविजुअल ना. हाँ, मैं वन इंडिविजुअल का निकालना है. ठीक है. टॉकिंग अबाउट दिस 2, he cannot be reached by anyone. Talking about this 8, he can be reached by multiple people. So सेकंड रो में तो ऐसा कोई भी नहीं है जो सिर्फ एक बंदे से रीच आउट हो सकता है. ठीक है. कमिंग टू द थर्ड रो, दिस कैन बी रीच्ड बाय ओनली 3.
cannot be reached by 9 and 8 and anything beyond them. So एक ये हो गया. Talking about this 8, it can be reached by multiple people. Talking about this 4, it can be reached by only this 3. So एक और हो गया ये. Talking about this 6, it can be reached by multiple people. 5 का देखें अगर, it can be reached by only this 2. So एक ये हो गया. Talking about this 3, it can be reached only by 1. तो एक ये हो गया. Talking about 9 multiple, talking about 5 multiple, talking about 1 no one, talking about this 2 only 1 which is 1. तो एक ये हो गया. 1 के लिए no one, 7 के लिए they are multiple, 6 के लिए they are multiple, 3 के लिए they are only 1 which is this 1. उसके आसपास वाला 3 9 के लिए they are multiple. तो कितने हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7. Total 7 people are there who can be reached by only one individual. तो इसका आंसर क्या हो गया? C 7. Coming to the next question, which of the following is true for any individual at a platform of height 1 meter in this layout? They can be reached by all the individuals on their own in their own row and column, which is false. They can be reached by at least 4 individuals. False. अगर वो one height का है, so he cannot be reached by anyone. सब उससे बड़े ही होंगे. And first condition says that if A needs to go to B, the second condition says that A needs to be at a height lower than B. So कोई 1 पे आ ही नहीं सकता because 1 से नीचे कोई है ही नहीं. तो इसका आंसर क्या होगा? They cannot be reached by anyone. Option number D. Simple question again. Coming to the third question. Third question क्या कह रहा है? We can find two individuals who cannot be reached by anyone in. Two individuals who cannot be reached by anyone in. लास्ट रो की अगर बात करें, लास्ट रो में ऑप्शंस क्या हमारे पास? लास्ट रो, फोर्थ रो. ठीक है, लास्ट रो और फोर्थ रो अगर हम देखें, ठीक है, लास्ट रो और फोर्थ रो अगर हम देखें, talking about the last row, this one cannot be reached by any individual. We have one this. This 7 can be reached by people, 5 can be reached by people, 3 can be reached by people, 9 can be reached by people. So last row में सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है. They are we are talking about two, right? We are talking about and we can find two individuals who cannot be reached by anyone in. तो लास्ट रो में तो सिर्फ एक ही है, दो तो नहीं है. When we talk about the fourth row में who cannot be reached है ना by anyone. So this 3 can be reached by people, 9 can be reached by people, 4 can be reached by 5 can be reached by this 4. This 1 cannot be reached by anyone and this 2 can be reached by this 1. So fourth row में भी there is only this one individual who cannot be reached by anyone. तो ये वाला आंसर भी नहीं है हमारा. थर्ड ऑप्शन देखें, द फोर्थ कॉलम एंड द मिडिल कॉलम. थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? फोर्थ कॉलम. फोर्थ कॉलम यानी ये वाला. 4 can be reached by multiple people. This 2 cannot be reached by anyone and this 1 cannot be reached by anyone. So फोर्थ कॉलम में हमारा आंसर मिल गया. हमारा आंसर क्या है फोर्थ कॉलम? Which is option number C. Again a pretty simple question. हम जस्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन हम मिडिल कॉलम भी एक बार देख लेते हैं. हमारा आंसर तो हमें मिल ही गया है. मिडिल कॉलम में दिस 2 कैन बी रीच्ड बाय 1, तो वो तो नहीं है. 3 कैन बी रीच्ड बाय 2, 4 कैन बी रीच्ड बाय 3, 5 कैन बी रीच्ड बाय 4 एंड 6 कैन बी रीच्ड बाय 5. तो 5 मिडिल कॉलम में तो देयर इज नॉट इवन अ सिंगल इंडिविजुअल हु कैन नॉट बी रीच्ड बाय एनीवन. तो इसका आंसर क्या है? सी. कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस लेआउट? पहले वाला क्या कह रहा है? ईच रो हैज एन इंडिविजुअल हु कैन बी रीच्ड बाय 5 और मोर इंडिविजुअल्स. विल कम टू द स्टेटमेंट लेटर बिकॉज हमें कैलकुलेशन में इसमें टाइम लगेगा. सो लेट्स एलिमिनेट द स्टेटमेंट्स फर्स्ट जिनमें टाइम कम लगेगा. जैसे इसमें हर एक इंडिविजुअल, हमें हर एक का, हर एक रो में हर एक इंडिविजुअल को देखना पड़ेगा. तब जाके हमें पता चलेगा कि हर एक रो में ऐसा कोई इंडिविजुअल है या नहीं जो 5 और मोर इंडिविजुअल से रीच आउट कर सकते हैं. तो विल कम टू दिस स्टेटमेंट एट लास्ट क्योंकि इसको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा. अगर बाकी स्टेटमेंट्स में हमें अपना आंसर नहीं निकलता है तब जाके हम ऐसे स्टेटमेंट्स पे आते हैं क्योंकि इट इज ऑब्वियसली अ टाइम सेंसिटिव पेपर, कैट का पेपर. कमिंग टू द ऑप्शन नंबर बी, ईच रो हैज अ इंडिविजुअल हु कैन नॉट बी रीच्ड बाय एनीवन.
इज दिस ट्रू? ईच रो हैज अ इंडिविजुअल हु कैन नॉट बी रीच्ड बाय एनीवन. हम देखते हैं, दिस रो हैज अ इंडिविजुअल हु कैन नॉट बी रीच्ड बाय एनीवन. यस. इधर हम देखते हैं 2 है, 9 of course can be reached by people, this 5 can be reached by people, 3 can be reached by people. ये 2 है जो कोई, जिसको कोई भी रीच नहीं कर सकता. यस. बट अगर हम थर्ड रो में बात करें, इस 7 को रीच आउट कर सकते हैं, 8 को रीच आउट कर सकते हैं, 4 को रीच आउट कर सकते हैं, 6 को रीच आउट करते हैं, 5 को भी रीच आउट कर सकते हैं. सो थर्ड रो में ऐसा कोई नहीं है हु कैन नॉट बी रीच्ड बाय एनीवन. ठीक है. तो हमें पता चल गया थर्ड में रो में तो ऐसा बंदा कोई नहीं है जिससे कोई रीच आउट नहीं कर सकता. सो फॉर श्योर वी हैव एलिमिनेटेड द स्टेटमेंट नंबर 2, द स्टेटमेंट नंबर बी. अब अगर हम थर्ड रो की बात करें, ईच रो, थर्ड स्टेटमेंट सॉरी, ईच रो हैज एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स हु कैन बी रीच्ड बाय इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. इसको भी हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, इसमें टाइम लगेगा. लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? ऑल इंडिविजुअल्स एट अ हाइट ऑफ 9 मीटर कैन बी रीच्ड बाय एटलीस्ट 5 इंडिविजुअल्स. ये देखते हैं. एट अ हाइट ऑफ 9 मीटर्स कौन से इंडिविजुअल्स हैं? एक, दो, तीन. ये तीन है 9. अब इसको कितने इंडिविजुअल्स रीच आउट कर सकते हैं? एक, दो, तीन. ओनली 3 पीपल कैन रीच आउट टू हिम. सो यहीं पे पहले 9 पे हमें पता चल गया दैट दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. ठीक है. सो वी कैन एलिमिनेट द लास्ट स्टेटमेंट एज वेल. अब हमें पता है कि इन दोनों में से एक है, अब एक तो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा. तो लेट्स से वी कैलकुलेट द फर्स्ट वाला ही ओनली. फर्स्ट वाला अगर गलत निकला तो हमें पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ईच रो हैज अ इंडिविजुअल हु कैन बी रीच्ड बाय 5 और मोर इंडिविजुअल्स. ठीक है. तो हम पहली रो में देखते हैं. हमने देखा ये जो 6 है, ही कैन बी रीच टू बाय हाउ मेनी पीपल? दिस 6 कैन बी रीच बाय 1, 2, 3. रो में से 3 आ गए, नीचे से 0 है. दिस 6 कैन बी रीच्ड बाय 3 पीपल. दिस 1 कैन बी रीच्ड बाय 0 पीपल. दिस 2 कैन बी रीच्ड बाय ओनली 1. ये जो 1 है इससे ही. दिस 4 कैन बी रीच्ड बाय ओनली 3 पीपल. दिस 3 कैन बी रीच्ड बाय ओनली नन ऑफ द पीपल, 0. सो हमें इनफैक्ट इसमें कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम ही नहीं लगा. पहली रो में ही हमें पता चल गया दैट पहली रो में ही ऐसा कोई नहीं है जो 5 और मोर इंडिविजुअल से पता रीच आउट कर सकते हैं. सो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी गलत है. सो ऑब्वियसली आर आंसर क्या है? सी, दैट ईच रो हैज एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स हु कैन बी रीच्ड बाय इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. इसको हम करके अगर देखना है तो करके भी देख सकते हैं. हमने फर्स्ट रो में देख लिया 6 और 4 है जो 3 3 इंडिविजुअल से रीच आउट हो रहे हैं, ये 1 0 0. हाँ, अगर हमें बाकी करके देखना है तो हम करके देख सकते हैं. एग्जाम में मत करना, जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन पर्पस हम इधर करके देख रहे हैं. ये एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है इस चीज में. हाँ. अगर ये 9 को देखें तो कितने रीच आउट कर सकते हैं इसको? इसको 9 को रीच आउट कर सकते हैं 3 पीपल. 5 को कितने रीच आउट कर सकते हैं? एक, दो, 2 लोग. 3 को कितने रीच आउट कर सकते हैं? एक, दो, 2 लोग. सो इधर भी हमें 2 का पेयर मिल गया. अब हम थर्ड रो देखें तो इधर कितने कितने रीच आउट कर सकते हैं? 7 को ओनली 1. 8 को कितने रीच आउट कर सकते हैं? 1, 2, 3. 3 पीपल. 1, 2, 3, 4, सॉरी 4 पीपल. 1, 2, 3 एंड 4. इस 4 को कितने रीच आउट कर सकते हैं? एक, ओनली 1 पर्सन. इधर भी वी फाउंड अ पेयर. कमिंग टू द फोर्थ रो, इस 3 को कितने लोग रीच आउट कर सकते हैं? ओनली 1 पर्सन. इस 9 को कितने लोग रीच आउट कर सकते हैं? एक, दो, तीन, चार. 4 लोग. इस 5 को कितने रीच आउट कर सकते हैं? एक, दो, तीन. 3 लोग. 1 को कितने लोग रीच आउट कर सकते हैं? 0. इस 2 को कितने रीच आउट कर सकते हैं? 1. ओनली दिस 1. सो इधर भी हमें एक पेयर मिल गया. कमिंग टू द लास्ट रो, इसको 0 है. इसका कितना है? इसका 1, 2, 2 है. इसका कितना है? 1, 2, 2. इसका भी हमें पेयर मिल गया. So we have found a pair in each of the rows. So obviously the option number C is correct. So I hope the following set was clear to everyone. It was a pretty simple set and ऐसे sets तो छोड़ना ही नहीं एग्जाम में, because this would be a deal breaker कि अगर तुमने कोई simple
ऐसा सिंपल सा सेट छोड़ के जिसमें लाइक इजी मार्क्स फेच हो रहे हैं, तुम कोई डिफिकल्ट सेट बाई चांस तुमने पकड़ लिया एंड देन तुमने उसमें लगा दिए 25-30 मिनट एंड देन भी वो सॉल्व नहीं हो रहा, सो लाइक अगेन ऑब्वियसली डीआई वाले सेक्शन में तो यू विल लैग आउट ऑब्वियसली। सो और ये सब पता कैसे चलेगा कि कौन सा सेट सिंपल है एंड कौन सा डिफिकल्ट है? ये क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए एंड दैट विल कम थ्रू प्रैक्टिस। कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना पता चल जाएगा कि ये सेट में कितना टाइम लगने वाला है, कितना डिफिकल्टी लेवल है सेट का। ठीक है। So for any further queries, reach out to us on the following number or reach out to us on WhatsApp or the given email ID. Thank you.